Now class 11, today we'll study on the variations of ionization energy or ionization potential or ionization enthalpy. All the words are the same. We'll see their variation in periods as well as in groups. You know that whenever we are seeing the periods, we always follow this fashion in this manner, and when you focusing on the group, you focus in this manner, right, top to bottom, and these are the horizontal rows, है ना. In this way you study the periods, so we'll focus on it. So earlier what happened, the variations of graph was made for 1 to 60 elements, and their atomic numbers, basically who have 1 to 60 atomic numbers, their ionization energies was seen, basically the first ionization energy. Now you are clear with the first and the second and the third ionization energy. So we were seeing the first ionization energies for the elements whose atomic number was 1 to 60. So a graph was plotted, and I am showing you the graph. Children, this is the graph that was plotted, and these were the values of ionization energy, and on this thing x-axis we have put the atomic numbers of the element. You'll see the graph is down, then it's going up, then it is down, then up, then down and up and down and up. In this way you are getting the highest value and the lowest value. So the highest value, you just see the element, what are they? Helium, neon, argon, krypton, xenon. So these are the noble gases, so they have the maximum ionization energy. First ionization, I'm not talking about the second ionization energy, I'm just talking about the first ionization energy of the noble gases were maximum. They were showing the maximum value. Why they show the maximum value? You know, they have the stable electronic configuration, so they cannot lose electron, gain or share electrons, right? That's why they becomes their ionization energy is very high, and they become very, you know, they are chemically inert in nature. They do not go for any reaction or reactivity. But you see the down values are related to your alkali metals. They are alkalis metals, and you know that alkali metals have the lowest value of ionization energy or the potential, or you know that they are highly reactive also, and they lose the electron very easily. So they have the because they all are metals and they have the tendency to lose the electrons, so they have a minimum or the low ionization energy value, you can see. Now we'll see, this is the graph representation, just to tell you between the difference between when you are getting a high ionization energy and when you are getting a low ionization energy. Now we'll see how it moves or it varies across the periods. Now you see about the periods, this is the period I have written. I am not writing the electronic configuration. We'll see individual elements also. And you know, when you move from left to right in a period, the ionization potential energy always increases. यहाँ पे सबसे lowest value होगी ionization उसकी energy की, और यहाँ पे आपकी highest होगी. देखो वही वाली बात आ गई, यहाँ पे आपके सारे alkali metals हैं. You know, these are the noble gases. Now if you focus on it, that when we move from left to right in a period, the atomic numbers are increasing. One thing you are seeing, that atomic number is increasing हो रहा है ना. Second point we come across, the number of shells are same. ये तो आपको पता ही है, नहीं भी पता है तो अगर आप उसमें देख लीजिए 1s2 2s1, यहाँ देखिए 1s2 2s2, ठीक है, 1s2 2s2 2p1, तो हर बार आपका 2e2 आ रहा है ना. तो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो आपके सेम है इसमें. सो only the number of this thing and differentiating electrons, they are entering in the same जो इसमें electrons आ रहे हैं, differentiating electrons, they are entering in the same shell every time. अगर आप इसको देखिए तो 1s2 2s2 2p2, देखो हर बार वैसे ही जा रहा है, ठीक है. एंड थर्ड थिंग इज़ दैट नंबर ऑफ शेल्स की वजह से, सेम होने की वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ठीक है. वी कम अक्रॉस से, देखो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, देखो 3 4 5 6 7 8 9 10. नंबर ऑफ शेल्स अभी तुमने देखा हर बार 2 2 2 2 इसी तरह से चल रहा है. वैसे अपने छोटे वाले लेवल पे देखोगे तो भी नंबर ऑफ शेल्स यू आर गेटिंग द सेम. व्हेन द नंबर ऑफ शेल्स आर सेम, द एटॉमिक साइज इज डिक्रीजेस. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ period, that when you move from left to right in a period, these three factors takes place, and because of it the overall if you see in the periods, the ionization potential is low.
So ionization potential is high. So when we move from top to left to right in the period, what happened? Because of these factors, the ionization potential इंक्रीजेस इन अ ग्रुप व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो यहाँ पे लोएस्ट है लिथियम के केस में, इधर हाईएस्ट है. नाउ यू कैन सी अबाउट फ्यू अदर थिंग्स ऑल्सो ओवर हियर. इंडिविजुअल टास्क, अगर आपको दो की कंपैरिजन करी जाए तो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ कुछ चीज़ें डिफरेंट आती हैं. ठीक है, लेट्स फोकस ऑन इट. नाउ लेट्स फोकस ऑन द बेरिलियम पार्ट एंड बोरॉन पार्ट. ठीक है, its atomic number is 1, its atomic number 5, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2 and 2p1. So this is the case if you compare both the parts. ठीक है, so if you see that over here 2 electrons are present in 1s, 2 electrons are present in 2s. Over here 2 electrons in 1s, 2 electrons in 2p and 1 electrons are present in 2p. Now if you compare these two elements, beryllium or boron, if you see the period in this manner, then you will say, ma'am, the ionization potential of boron is high and beryllium is less, because we are moving from left to right in the period, the ionization potential increases. But I am showing you the electronic configuration term. Now just focus on these two terms. Beryllium electronic configuration is this, boron is this. If you see the last case over here, 2 electrons, it is completely filled. And if you see the p1s, 1 electron is present. What do you think? To remove the electrons from this case, you need less amount of energy, or in this case, in boron you will get the you need less amount of energy to remove the electrons from the 2px. But in beryllium you will see it is 2s is completely filled, so you need extra. ये एक डिस्पेंसरीज है, या इसको कह सकते हो डिस्क्रिमिनेशंस है, या एक डिफरेंस है, और ये बिल्कुल बियॉन्ड द डिफरेंट जाके चलता है. जैसे पीरियड में तो हम देखते हैं, अगर कायदा कहता है तो बोरॉन की आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होती है बेरिलियम की, लेकिन यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को रिलेट अप करेंगे, देन यू विल से कि बेरिलियम्स जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है मोर है कंपैरिजन टू बोरॉन. यहाँ हमारे पास वो कंडीशन है. द रीज़न इज़ दैट द if you see the beryllium, it possesses higher ionization potential over here comparison to boron, because it has completely filled. अगर आप इसको कंडीशन देखें तो यह 2s जो है वो completely filled है. सो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कम्प्लीटली फील्ड है. या बहुत से तुम्हारे पास एग्जाम, इसको तुम प्रूफ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है, जबकि हम तो देखते हैं कि पीरियड्स में ना इंक्रीज़ होता है. यहाँ पे बोरॉन का इंक्रीज़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बेरिलियम का आ रहा है. तो पहला एक जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि बेरिलियम कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द 2s orbitals, and this is the case in boron. We are having only 1 electron in 2p. ये कंडीशन है. वो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस कंडीशन में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, जबकि यहाँ पे नहीं है, ना हाफ फील्ड है ना कम्प्लीटली फील्ड है. क्यों? क्योंकि ये कम्प्लीटली फील्ड है. ठीक है, फिर नेक्स्ट कंडीशन है कि जो यहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉन्स भी कम है, तो शील्डिंग इफेक्ट भी कम लग रहा है ना. अगर इसका आप डायग्राम बना के देखेंगे बेरिलियम का, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि बोरॉन में आप देखेंगे, बोरॉन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. फिर नेक्स्ट जो है वो आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना. तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के होने की वजह से क्या है, शील्डिंग आपकी ज़्यादा इफेक्ट है, और यहाँ पे नहीं है, है ना. तो दिस केस इज़ ऑल्सो अ पॉइंट कि जो इसमें है कि बेरिलियम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ पे जो शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं लग रहा है बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स, राइट, एज़ कंपेरिजन टू बोरॉन, क्योंकि बोरॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन्स 2p में है. तो वो वाले भी तो आपकी एक शील्डिंग इफेक्ट जनरेट कर इधर 2p में है, वो भी तो है एक आपको शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट अप कर रहे हैं. तो दिस वे दे हैव बेरिलियम हैव मोर आयनाइजेशन पोटेंशियल कंपैरिजन टू बोरॉन. फिर एक और एग्जांपल आता है, आप नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन, देखो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का केस देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगाइए हमेशा, देन यू विल थिंक अबाउट इट, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा. नाउ इन दिस केस नाइट्रोजन का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, जबकि होना क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का कम होना चाहिए, ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा है. नाइट्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल इज़ मोर कंपैरिजन टू ऑक्सीजन. जस्ट सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसमें क्या है, हाफ
हाफ फिल्ड शेल्स हैं ये। और नाइट्रोजन के केस में तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये ज़्यादा स्टेबल होंगे कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ हाफ फील्ड का सिनेरियो नहीं है, इसीलिए यू नीड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 2pz, ठीक है, कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। यहाँ पे तो ईजिली हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा लगेगा नाइट्रोजन के केस में कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, क्योंकि केस क्या है, यहाँ वहाँ कम्प्लीटली फिल्ड था, यहाँ क्या हाफ फिल्ड का कनेक्शन है ना, हाफ फील्ड का केस है। तो इसीलिए आप ये देखोगे कि इसका मैं डायग्राम भी बना देती हूँ, जो एक्चुअल में डायग्राम आयनाइजेशन पोटेंशियल और एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इन सब एलिमेंट्स का बनता है, वो एक्चुअली हमारा अगर हम देखें तो ग्राफ क्या है, हमारा डिक्रीज़ पे आना चाहिए या इंक्रीज़ पे आना चाहिए, ये चीज़ होगी ना। अब यहाँ पे इंक्रीज़ आना है तो जो भी आप ग्राफ बनाओगे, ग्राफ आपका ऐसा आना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो कि आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो तो बिल्कुल उटपटांग कंडीशन दे रहे, तो ग्राफ आपके जिगजैग आएंगे, ऊपर नीचे इस तरह से ग्राफ आएगा आपका। ये नहीं आएगा जो हम क्लास 10th में सीख के आए। नाउ आई एम शोइंग यू द ग्राफ। जस्ट सी, लिथियम, फिर बेरिलियम का ज़्यादा हुआ, बोरॉन का भी देखा नीचे है, कार्बन का ठीक है, नाइट्रोजन का सही है, फिर ऑक्सीजन नीचे हो गए उससे, फिर एफ फ्लोरीन है, फिर नियॉन, ये तो सबसे ज़्यादा आएगा। तो ग्राफ आपका ऐसे नहीं आ रहा है, हाई स्टेट में नहीं आ रहा है, ये ग्राफ ऊपर नीचे आ रहा है। और आपने कंडीशंस इन दोनों की मैच करके देखी हैं, अभी इन दोनों की देखी, बाकी तो सिमिलर है, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब एक्सेप्शनल केसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेरिलियम, बोरॉन। टाइम द नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, क्योंकि यही आपको पीरियड बताएगा, ये आपका 4 है ना। तो एवरी टाइम व्हाट यू आर सेइंग दैट number of shells are increasing, यहाँ पढ़ के आए हो। so number of shells are increasing, therefore size of atom या atomic size increases, ठीक है। this thing also there। तो एक सिनेरियो तो आपके पास ये हो रहा है कि जब आप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ कर रहे हो तो आपका एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। Second point is that every time your just see the inner electrons, they are also increasing, है ना, increase हो रहा है ना हर बार। so increase in number of inner electrons, वो भी इंक्रीज़ करा। अब वो इंक्रीज़ करा तो जाहिर सी बात है भैया, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ करेगी, शील्डिंग इफेक्ट विल इंक्रीज। और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है जो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूजली बॉन्डेड होंगे। सो शील्डिंग इफेक्ट जो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ दिस थिंग, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी लूजली बॉन्डेड, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट लो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। अब देख लो इसमें आपको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है। नंबर ऑफ़ शेल्स अभी मैंने बताया, नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ कर रहे हैं तो एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है, यानी साइज़ ऑफ एटम बढ़ रहा है। अब इसके वजह से देखो यहाँ पे कितने सारे इस इलेक्ट्रॉन्स तक पहुँचने के लिए कितने बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनर इलेक्ट्रॉन्स भी आपके इंक्रीज़ कर रहे हैं। इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो वो न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन पुल लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो घट जाएगा। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है दैट आर लूजली बाउंडेड इज नाउ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लूजली बाउंडेड टू द न्यूक्लियस, और इसीलिए हमें लो एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उनको रिमूव करने के लिए। सो दैट इज़ द सिनेरियो ऑफ केस। सो ग्रुप का केस बहुत ईजी होता है, ज़्यादा वो नहीं होता है, क्योंकि देखो जब इनर इलेक्ट्रॉन्स आपके बढ़ते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। अभी मैंने बताया था ना, जब इनर इलेक्ट्रॉन्स आपके बढ़ते जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर, वैसे तो देखो न्यूक्लियस से वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को जो भी होंगे उन सबको अट्रैक्ट करेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या है कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने की वजह से ये जो न्यूक्लियस का पुल लग रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर वो कम हो जाएगा, दैट विल बी डिक्रीज। तो अब क्या होगा, आप थोड़ी सी भी लो आयनाइजेशन एनर्जी अप्लाई करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन बाहर, ठीक है। सो ये ग्रुप में कंडीशन प्लस पॉइंट क्या है, एक तो नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहे हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो जो न्यूक्लियस जो अट्रैक्ट कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी लूजली बॉन्डेड
and they will be removed very easily by applying a low amount of ionization energy. So this is the scenario of group. No matters, देखो ग्रुप में और पीरियड्स में एक चीज़ कॉमन है, वो है न्यूक्लियर चार्ज. दोनों में, पीरियड भी और ग्रुप में, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो दोनों जगह पे ये इंक्रीज़ ही करती है. ठीक है भाई, एटॉमिक नंबर दोनों जगह ही बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसमें कोई इशू नहीं है. ठीक है, लेकिन क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप में भी बढ़ रहा होता है, पीरियड्स में भी यहाँ ग्रुप में बढ़ रहा है, लेकिन वो कैंसल्ड हो जाता है, इफेक्ट नहीं करता. क्यों नहीं करेगा यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव होगा? क्योंकि यहाँ पे आपके पास इनर इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है, शील्डिंग इफेक्ट है, नंबर ऑफ शेल्स, ये सब चीज़ें प्रोमिनेंट हो जाती हैं. अभी तक आपने सिर्फ ये पढ़ा था नंबर ऑफ शेल्स डोमिनेट्स करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनर इलेक्ट्रॉन्स, शील्डिंग इफेक्ट प्रोमिनेंट करता है और नंबर ऑफ शेल्स. इनकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज जो इंक्रीज़ भी कर रहा है ग्रुप में, वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, वो कैंसल्ड हो जाएगा. बिकॉज देयर आर टू थिंग्स. न्यूक्लियर चार्ज, देखो यहाँ पे भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है. अभी यहाँ पीरियड को हटा दो, तो मैं समझाने के लिए लिखा है, लेकिन यहाँ थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, but this nuclear charge will not dominates over these two things. Number of shells is increasing and the shielding effect is increasing, that therefore the nuclear charge is cancelled in the group and the ionization potential is low in the group. So overall क्या हो जाएगा, ionization potential या energy बोल लो is low in the group. One more thing you have to remember in ionization energy or ionization potential, when you are removing an electron, right, so you need this particular energy. So there is always, देखो एक एनर्जी आप ले रहे हो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी हो रहा है या एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो रहा है. यहाँ पे हो रहा है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चे भूल जाते हैं. एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन यू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन. जब इसमें से एक रिमूव इलेक्ट्रॉन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट टू अ केटन. ये छोटी सी वन वर्ड वाला है कि आयनाइजेशन की भूल जाते हो आप लोग कि व्हेन यू रिमूविंग इलेक्ट्रॉन यू नीड एनर्जी, यू रिक्वायर्ड एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड. सो रिक्वायर्ड का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो रही है. ठीक है, तो बेसिकली अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, क्योंकि आप एब्जॉर्प्शन कर रहे हो ऑफ एनर्जी, आपने हीट की ज़रूरत